السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ غزوہ تبوک آدھا ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے باقی آدھا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے بات بولنے کی، پھر ہم سب کو سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو، پہلے یہاں تک ہو چکا ہے کہ وہاں ہمارے صحابہ، وہاں کا لیڈر کا ٹوپی دیکھ کو تعریف ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کا لباس کے بارے میں بتائے۔ تمہیں یہ ٹوپی کے بارے میں کیسا سمجھتے ہیں؟ وہ لباس جنت کا تمہیں معلوم ہونا ہے تو تمہیں حبیر ہو جاتی ہے۔ کہتا بھی نہیں جنت میں منافقیوں سے لباس کے سامنے اس کا ٹوپی کیا بھی نہیں کو بول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، وہاں تک ہو گیا۔ اب جنگ نہیں ہوئی اور اسی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ شروع کر دیے، روانہ شروع ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو نکلتے سے سامنے منافقہ ایک مسجد بنائے، ایک مسجد بنا تو ہے منافقہ۔ وہ لگا بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ مسجد میں آ کے ایک بار نماز پڑھاؤ۔ وہ بولتے وہ کہاں بنائی کرتے تھے؟ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے سے مسجد قربہ کے نزدیک ہی آس پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اب تو جنگ کو جاتا ہوں ہے نا، جا کے آنے کے بعد انشاءاللہ کرتا ہوں، وہ بولتے۔ اب واپس آ گئے نا، واپس آ جانے کے بعد معلوم ہوتا وہ مسجد کئی کو بنایا اسلحے کا لیکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آنے کے بعد نماز پڑھاتا ہوں وہ بولے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس آ جاتے۔ اب واپس آ جانے کے بعد منافق کا ایک ایک جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا کو بہانے بولتے رہتے، ہم نہ وہ گزر رہا، یہ گزر رہا، وہ پرابلم، یہ پرابلم، ہم نہ اس وجہ سے ہمیں جنگ میں آئیں نہیں تمہارے ساتھ، نہیں تو ہمیں آتے سو، وہ بولتے بہانے بولتے سو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ تمہیں کیا کیا آپ بہانے بولنا کو مجھے، تمہیں جھوٹے کو بول کر آلریڈی اللہ مجھے بتا ڈالا راستے میں کو بولتے۔ راستے میں واپس آتے شکر راستے میں سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا ڈالتا، یہ لگا جھوٹے کو۔ اب وہ سورہ توبہ 90 میں آیت میں بتایا اللہ کیا کو بول کو، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالت دیے ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ یہ آیت میں بتا دے اللہ۔ یہ لگا منافقہ، یہ لگا جھوٹے، تمہارے کہنے کا آپ لگا جھوٹے باتیں بولتے رہتے ہیں، تمہیں ماننا نہ کو ہرگز کو بول رہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ اب وہ مسجد کے بارے میں دیکھیں گے، دیکھو اب وہ مسجد ایسا بننا ہے نا، وہ مسجد کے بارے میں بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا ڈالتا۔ سورہ توبہ 107 میں آیت میں
और वो जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने को और कुफर के सबब और मुसलमानों में तफरका डालने को और उसके इंतजार जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, और वो जरूर कसमें खाएंगे हमने तो भलाई चाहे और अल्लाह गवाह है कि वो बेशक झूठे हैं। अब इसमें क्या बोलता है कि तो अल्लाह वो मस्जिद के बारे में बोलता है, वो लगा बनाए सो अच्छे के वास्ते नहीं, नुकसान पहुंचाने के वास्ते, वो लगा अलग होने हो मुनाफिका, ये लगा पूरे फिर बनाए सो, ये लगा अलग होने सुख से अलग हो जाओ, हमें हमारा राजी चलाएंगे और बोल को अभी इंसान के अंदर एक के दूसरे के अंदर खिलाफ डाल को सेपरेट कर डालेंगे, वो बोल को अलग कर डालेंगे, वो बोल एक एक को वो बोलता अल्लाह बोलता है वो लगा झूठे। अब वो लगा आपको तुम्हारे कहने कसमा खा खा तो बोलते नहीं हमें अच्छे के वास्ते जो हमें मस्जिद बनाए को बोल दो तुम्हें मानना न को, वो लगा झूठे अल्लाह गवाह है वो बोलता अल्लाह बोलता है खुद आयत में। फिर दूसरी आयत भी उतारा सूरह तौबा 108, उस मस्जिद में तुम कभी खड़े ना होना, उस मस्जिद में तुम कभी खड़े ना होना, बेशक वो मस्जिद के पहले ही दिन से जिसकी बुनियाद परहेजगारी, ये कौन सा मस्जिद के बारे में बोलता है तो अल्लाह मस्जिद कुर्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए से मस्जिद के बारे में बोलता है, बेशक वो मस्जिद के पहले ही दिन से जिसकी बुनियाद परहेजगारी पर रखी गई है, वो इस काबिल है कि तुम उसमें खड़े हो, उसमें वो लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद है। और अल्लाह बोलता है वो मस्जिद में चे, कौन सी मस्जिद है, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा बनाए, वो मस्जिद नीचे किस बुनियाद में बनी, वो नेक बुनियाद के ऊपर हुई, परहेजगारी के ऊपर वो बनी, बुनियाद के ऊपर परहेजगारी के बुनियाद के ऊपर वो मस्जिद बनी, वो मस्जिद अच्छी, वो मस्जिद में तुम्हें जाना, वो मस्जिद में खड़ना, वो मस्जिद में कैसे लोग कैसे वाले करते तो परहेजगार है, अल्लाह को परहेजगार करने वाले बहुत पसंद है, वो बोलता अल्लाह बोलता है ये मस्जिद में तुम्हें हरगिज जाना नको खड़ना नको, वो मस्जिद में चलो, उसी मस्जिद में करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए सो मस्जिद कुबा है उसमें चलो तो मेरे को बोलो अल्लाह बोलता है। अब जब हमारे नबी क्या करते जब ऐसा दो आयत उतार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने के बाद नक्वर हो तुम्हें को बोल बोले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा को बुलाते, अमर इब्न यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें को बुला को बोलते तुम्हें जाको वो मस्जिद तोड़ डाल को जला डालो, जाको मस्जिद को बोल बोलते, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बोले कि वैसा जाको तोड़ डाल को उसे जला डालते। अब वो मस्जिद के अब भी इस जमाने में हमें गए तो भी वो मस्जिद को कचरे डालने की जगह के नाम बरतते, बोला कई को कहते मुनाफिका बनाए सो वो अच्छी नीयत से बनाए सो मस्जिद भी हो होने से उसको गिरा डालो को जला डाले सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए सो। अब आज के जमाने में आज हम अब गए तो भी इस जमाने में गए तो भी वो जगह को कचरे डालने के वास्ते बरतते रहते और तनापाक जगह वो मस्जिद है आसपास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए सो आसपास के मस्जिद में बनाए सो लगा भी। अब इसके बारे में भी अल्लाह सूरह तौबा में 110 पे आयत में भी फरमाता है ये इमारत जो इन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में भी यकीन की जड़ बन रहेगी जिसके निकालने की कोई सूरत नहीं। कहे तो अब बोला था ये वो हमें अच्छे हिस्से बनाए को बोलते हैं ना, वो बारे में अब आपसे लेसन क्या करे उसे गिरा डाल को जला डाले ना, वो लगा के दिल ना कट जा पर रह देना मुनाफिका के। अब वो बोलता है वो लगा के बारे में अल्लाह बयान करता है वो लगा उस तकलीफ में बाहर आ सकते नहीं उससे निकल सकते नहीं को बोल रहा है अल्लाह, बजाय इसके के उनके दिल ही पारा पारा हो गए, पारा पारा तो टुकड़े टुकड़े हो जाना उनके दिल। अल्लाह निहायत बाखबर और हकीम व दाना है। अब ये आयत हो गई। अब मदीना को जाने के बाद ये सलूल को बोलते एक आदमी रहता, वो आदमी इंतकाल हो जाता, वो आदमी कौन कहते हैं मुनाफिक का हेड है, वो आदमी भी मुनाफिक है, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने सलूल रजी अल्लाह तआला ईमान वाले अच्छे आदमी नेक परहेजगार सहाबी इना के अब्बा वो मुनाफिक है। अब वो मर गए तो वो आदमी सहाबा को वो सहाबिया को अब्दुल्ला इब्ने सलूल रजी अल्लाह तआला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते क्या को तुम्हारा शर्ट दियो मुझे, तुम्हारा कुर्ता दियो तो मैं हमारा अब्बा के कब्र के अंदर रखता हूँ शर्टे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी रहता नहीं देना, लेकिन वो सहाबी के वजह से अब्दुल्ला इब्ने सलूल रजी अल्लाह तआला अन्हु गुनाह की वजह से
अच्छा ही ना की वजह से दिया, तो वो बोल को वो शेट देते निकाल को वहां दे डालते। अब वो रोज में रहते। अब उसके बाद फिर वो साहबी बोलते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जनाजे की नमाज भी तुम्हें पढ़ाओ। वो बोलते जब अच्छा वो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी रहता है जनाजे की नमाज भी पढ़ाना। कई को तो मुनाफिक, उन मुनाफिक होने से पढ़ाना राजी रहता है, लेकिन उनके वास्ते पढ़ाने के वास्ते अच्छा वो बोलते। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते या रसूल अल्लाह क्या बात करते हैं, तुम्हें मुनाफिक की जनाजे की नमाज पढ़ाना चाहो, तुम्हें अल्लाह नक्को बोल को बोले ना, तुम्हें ऐसा करना नक्को बोल को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अल्लाह ये भी बोले ना, वो बोल के बोलते सूरह तौबा 80 आयत में, 80 आयत में क्या वो बोला गया, तो अल्लाह तुम्हें कितने बार माफी मांगे तो भी मुनाफिका के बारे में मैं माफ करता हूँ। तुम्हें माफी मांगो या ना मांगो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 70 मर्तबा भी इनके लिए माफी मांगे तो मैं माफ नहीं करता हूँ, बोल को अल्लाह सूरह तौबा 80 आयत में फरमाता है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रुकाते हैं, वो बोलो तुम्हें रुकाना आपको, अल्लाह ऑलरेडी बोल रहा है ना, कितने बार माफी मांगो तो भी मुनाफिका को अल्लाह माफ करता नहीं, को बोलो नहीं को बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ा जाती। पढ़ाने के बाद फौरन अल्लाह फिर को आयत उतारता, सूरह तौबा 80 पर 4 में आयत उतारता, क्या को बोल दो आइंदा उनमें से जो कोई मरे उसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज ना पढ़ाना और ना कभी उसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया है और वो मरे हैं इस हाल में के वो फासिक थे। और अगले बार में अल्लाह बोलता है तुम्हें अब तो पढ़ा डाले, लेकिन ये बात सी तुम्हें वो मुनाफिका के जनाजे में जाओ नमाज पढ़ाना नको, वो लगा के कब्र के पास भी जाओ खटना भी नको तुम्हें, को बोलकर अल्लाह बोलता है कईयों पे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लगा कुफर करे, ये लगा मरे तो भी कैसा हालत में मरे, ये लगा फासिक है, ये लगा फासिक लोग है, तुम्हें जाना नको, बोलकर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहा था आइंदा तुम्हें जाना नको बोलो। अब अल्लाह क्या करता है, तो मुनाफिका कौन कौन है कि वो लगा के पूरे नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता डालता, फलाना फलाना आदमी को बोल के लिस्ट है। अब वो लिस्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देते हो, देखो बोलते तुम्हें किसी भी बताना नको ये लिस्ट है, को बोलते तुम्हारे कने रहेंगे, वो बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हो ना लिस्ट है। तो यार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जरे सहाबा दिन सारी ना के पीछे जाते रहते, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे कौन कौन है, कौन कौन मुनाफिका, क्या अल्लाह उतार रहा है डायरेक्ट फलाना फलाना आदमी मुनाफिक को बोल मालूम कर लेने का वास्ते जाते रहते। अब क्या हुआ करते तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े सहाबी की हम सबको मान, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेकी में कभी सामने चलते हो, उनके बारे में कितना बड़ा है वो भी कमी है, उनके बारे में उतने बड़े सहाबी होकर भी डरते हैं, मेरा नाम है क्या कि उसमें हो अच्छा कौन कौन है कि बोलना नहीं हो, तो बोल को इन्हों क्या करते क्या तो जाको हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला के पास जाको, क्या मेरा नाम है क्या उसमें, वो ये बोलो मुझे बस अभी क्या भी ना को देखो वो इतने नेक काम कर को भी गलती नहीं कर को गुनाह नहीं करते भी फिर भी उन्होंने मुनाफिक क्या की, अल्लाह इन्हों को मुनाफिक को बोलकर डिक्लेयर कर रहा हो तो क्या बोलता वाला क्या की, तो बोलकर डर जाते हैं अंदर से। आज हमारा हाल देखो, हम ना नमाज पढ़ना आता नहीं, अल्लाह की बड़ाई करना आता नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेजना भी आता नहीं, दरूद भेजने का हमारे पास वक्त भी नहीं है। सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वास्ते तड़पे, उना के वास्ते हमें दिन में एक बार भी ना के ऊपर दरूद भेजने का टाइम हमारे पास नहीं है। आज हमारा ये हालत है, फिर वो हमें डरते नहीं, लेकिन वो लगा वक्त करते भी जंगा में लड़को, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ लड़को, अपनी जान को कुर्बान कर को, माल को कुर्बान कर को जंगा में लड़को, कितने तकलीफ झेले तो भी तक झेलने के बाद भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला डरते हैं, मेरा नाम है क्या कि उसमें मेरा आखिरत बर्बाद हो जाती है, वो डर जाते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला। आज हमारी हालत देखो, हम ना ये काम भी सीधा करते नहीं, अल्लाह बोले सुन की एक भी सीधा करते नहीं, लेकिन हमारे अंदर डर नहीं है। वो लगा पूरे करते हुए भी अल्लाह से वक्त डरते हैं वो, अच्छा उन्होंने बोला नहीं है तुम्हारा नाम, बहुत खुश हो जाते हो, अच्छा मेरा नाम नहीं है बोलो। उसके बाद से हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसके किसके जनाजे में जाते हो तो देखते ही उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखो सिर्फ उना के जनाजे में खुद जाते, कई लोगों को अल्लाह आयत उतार डाला, नबी को बोलना लगा मुनाफिका के जनाजे में ये बात जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है, कब्र के पास जाओ खड़ने की इजाजत भी नहीं देता तुमको, बोल अल्लाह बोल लगा। उसकी वजह से वो किसके जनाजे में जाते कि जाते ही पीछे से
इन अच्छा होने इन मुनाफिक ने किसके जनाजे ले जाते कि अम्मो इन गए जानी इन मुनाफिक के तो बोलता हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक जाते रहते हैं वैसा। अबे कौन है तो मुनाफिका है कि मुनाफिका को बात अलग है बोला पहले कंसी से झूठ बात बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते रहे ऐसा वैसा बोल को। तीन सहाबा होकर तीनों भी ईमान वाले होकर तीनों जंग में नहीं गए। काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिलाल इब्ने उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुरारा इब्ने अर-रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों जंग में गए। ये तीनों मुनाफिका नहीं, कम के पूरे गए तो मुनाफिका होने से झूठा बात बोल को गई नहीं, हमें नहीं जाना को बोले। लेकिन ये तीनों ईमान वाले मुसलमान सहाबा ये लगा तीनों गई नहीं जंग में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कंफर्म आना है सोच हर एक आदमी भी है जंग में तो बोले। अब ये लगा तबूक में शामिल नहीं हुए, ये लगा मुनाफिका नहीं को बोल को सबको मालूम। अब क्या हुआ करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ गए हो, एक मुनाफिका को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे झूठे बातें बोलते रहता, हम ना वो प्रॉब्लम ये उधर है उसकी वजह से हमें आई नहीं तो बोल को एक बोलते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जाहिर बातें को मानते, ये लगा मुनाफिका को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम, उसका से खाली ऊपर से कबूल करते, दिल का हालत अल्लाह को छोड़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे करते स्टेप को एक जन आते रहता बोलते रहता जाते रहता। खाब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब गुनाह का टाइम आया, अब उन्होंने आए सामने इना को भी ना रिश्तेदार बहुत जन बोलते तू भी झूठ बोल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते नहीं कहे तो तू सही बोल रहा है तो नाराज हो जाते, तू तेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हो ना तो झूठ बोल रहा है। शैतान भी बहुत कोशिश करता है जैसे झूठ बोलवाने के लिए, लेकिन जब इन्हें जाकर भेटे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते ये काब तेरे पास सवारी नहीं है क्या? या रसूल अल्लाह है सवारी, जंग का सामान तेरे पास नहीं है? या रसूल अल्लाह है। फिर तू कई को जंग में शामिल नहीं, क्या तो उज़र है क्या तो रीजन है क्या को बोल पूछते। जब उन्होंने बोलते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कोई उज़र नहीं, मैं शैतान के वजह से शैतान के बातों में आ जाता हूँ, रुक गया हूँ। शैतान में जो बोलते रहा ये लगाकर सवारियां नहीं है, एक के बारी बारी होकर ये उनको 18 सहाबा को बोल के बोलूंगा वही सब कितने रोज को नहीं लगा जाने का, तेरे कल तो सवारी है तो स्पीड होने चल गए जाने, 2 रोज आराम करे वो बोलते भी आराम कराया। फिर उसके बाद और बोला ठंडी हवा आती है ना और 2 रोज आराम कर, अभी जल्दी चल गया तो जल्दी चल जाता, वो लगा अभी जा पर रहेगी। ऐसा करते 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 शैतान मुझे सवा डालते शैतान मुझे आइंदे नहीं जंग में तुम्हें आगे बीच में तुम्हें आगे वापस है, मैं क्या भी झूठ बोलता नहीं तुम्हारे से सच बोलता है, मेरे कल क्या भी उधर नहीं है, मेरे कल क्या रीजन नहीं है, तुम्हें क्या करे तो भी क्या फैसला करे तो भी मेरा पीछे बोल। जब कम के दोनों को भी पूछते काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, बिलाल इब्ने उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मुरारा इब्ने अर-रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों को बोलते उठ जाओ तुम्हें यहाँ से मस्जिद नबवी से उठ तुम्हें चल जाओ यहाँ से, जब तक का अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला करता नहीं जब तक मैं तुम्हारे बारे में क्या भी बात करता हूँ नहीं, तुम्हें यहाँ से उठ को चल जाओ बोला को बॉयकॉट करते बोला। कौन साहब तक बोलते कौन भी एतीना सी बात करे जानी जी असल कौन भी असल बात करे जानी एतीना सी तो बोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। अब ये लगा ऐसा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान जाओ चले जाते पीछे घर आगे चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते बीविया को, वो लगा कि 3 बीविया को बोलाते तो मैं घर आगे चल जाओ तुम्हारे हमारा घर आपको लगा के पास लाना तो बोलो। इसमें दोनों बीविया बिलाल इब्ने उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुरारा इब्ने अर-रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों के बीविया आपको बोलते, ये दोनों बूढ़े जरा उम्र में बूढ़े आपको बोलते हमारे शोहरा बूढ़े हमें वो बोल के चल गए तो लगा कि खिदमत करने वाला कौन भी रहता नहीं, जरा हम ना इजाजत दियो परमिशन दियो वो लगा करे रहने के वास्ते हम ना वो बोल के चलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अच्छा रहो लेकिन तुम्हारा जिस्म कुछ लिए जाने लगा, तुम्हारे जिस्म करने को आए जाने लगा, फिजिकल होने तुम्हारे पास से लगा आई जानी को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। जब वो दोनों बीवियां बोलते वो दोनों सहाबा की बीवियां बोलते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से ये लगा तो मालूम हुआ कि मैं इनसे नाराज हो कहेगा बोल को, वो लगा का हालत ऐसा होगा तो रोना चुप को अभी क्या भी नहीं, वो लगा की हालत है हमारे कने आने का शौक क्या, हम ना पकड़ लेना क्या नहीं, हमारी खुशी से जिंदगी गुजारना क्या, ऐसा क्या अभी नहीं है। वो लगा का हालत एक ही हालत है जब से तुम्हें नाराज है वो बोलने वाले हुआ रोना 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 एक ही रोते रहे, वो लगा रोने में से वो लगा
वो लगा कि अंदर ताकत नहीं है, हमारे पास आने की ताकत नहीं है, ख्वाहिश उड़ा के अंदर नहीं है। वो बोलते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा जाओ तो बोलते। काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान आदमी बिरलो मुनाफिक रिश्ते दारा बोलते, जब मुनाफिका बोलते जागो तुम्हें भी बोल रहा तुम्हारे अंदर तुम्हारी बीवी रहने के वास्ते का बोल रहे तो उन्होंने बोलते मैं ऑलरेडी गलती कर रहा हूं, मैं नहीं कह सकता गलती कर रहा हूं, अब मैं झूठे बात बोलता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तेरा क्या हुआ, बोला का दो लोगों को बुद्धि तो जवान आदमी तुझे कहीं को बोल को पूछते मैं बोलता नहीं को बोल को काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते। अब ऐसा कौन भी बात करता नहीं। चंद रिवायतों में, बाद रिवायत में आता है 40 दिन पूरा कोई भी बात कर नहीं सका, अलग सी है पूरा शहर में। मामूल बात है 40 दिन या 50 दिन, 50 दिन बोल के थोड़े रिवायतों में है, थोड़ी रिवायत में 40 दिन बोल गए। 40 दिन है तो भी, 50 दिन है तो भी कि कौन भी एक आदमी भी तुम्हारी बात करता नहीं। भाई सब तुम्हें वो प्लेस में रह सकते हो, गांव में तुम्हें रह सकते, कितना वड़वा को कट जाते रहता दिल्ला। अब एक काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बारी सेंटर में जाते हैं तो बाजार में जाते हैं इस को। अब एक कब है तो आप से लगा से नाराज है तो मालूम हुआ कि दूसरा दुश्मन फायदा उठाने का वास्ते था। अब मुझे कलीम भाई से दुश्मनी है, अब कलीम भाई दूसरे उसके पास है। अब कलीम भाई को लगा तू कलीम भाई को उनके भाई को पढ़ना नहीं, मैं वो दोनों पढ़ना इसको मैं क्या करता हूँ कलीम भाई मेरे तरफ खींच के देखता हूँ। मैं लगा दुश्मन होने से कैसे होता वो दोनों पढ़ना नहीं, मैं ना छुड़ा लाऊंगा तो बोलो मैं देखता हूँ। सेम फारिस का या रोम का बादशाह खत लिखता, काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी को देखो खत भिजा था, उन सेंटर में आकर पूछता काब इब्ने मालिक कौन है, काब इब्ने मालिक कौन, काब इब्ने मालिक कौन हो सेंटर में। अदमे वो लगा के तरफ दिखते भी नहीं, आपसे उसमें बात करो ना पता ना, वो सेंटर में जाते हैं तो वहां तरफ देखते भी नहीं बाबा में, उनका दिल हबी कर जाते रहता। खाली कौन को बोल पूछे इशारा करते फलाना आदमी काब हो, ऐसा इशारा करते नीचे को उन पूछता उन जाके ऐसा लेटर देता हूँ। वो लेटर में क्या बोलना था करते तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ वो बुरा करे तुम्हारा, तुम ना इज्जत देना, ये लगा तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें ये लगा तुम्हें हमारे कहने का आ जाओ हमें तुम ना इज्जत देते, तुम्हारे गांव में तुम्हारी कौन भी एक जना भी बात करता सुन नहीं है, तुम ना वक्त सब कुछ सजा कहीं को देना, तुम्हें हर एक जंग में तुम के साथ रहे, खाली गज़वा तबूक एक जंग में नहीं है उसको इतना सजा देते क्या। काब इब्ने मालिक सही भी हर एक जंग में हमारे नबी के साथ रहे सिवाय तबूक के उसमें चुना नहीं गए, नहीं तो हर एक जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे होगा। उन्हें बोझ बोलते हो वो दुश्मन बोलता हर एक जंग में साथ रहे, ये जंग में नहीं है उसकी इतना सजा देना क्या इन्हों, तो हमारे कहने का जा ये होदा भी देता मैं मेरे नजदीक रख लिया तुमको बोल बादशाह लिखता लेटर। अब हमारे जैसे नालायका है तो क्या समझते वो उसके पास चले जाते, ये लगा कैसा भी हमारी बात करना नहीं, एक जना भी हमें कहीं क्या रहा ना, ये लगा हर एक जंग में शामिल रहे हो, ये जंग में नहीं जाते बोलो जब तक सजा देते हैं क्या वो बोलो हमें उसका नहीं चले जाते। लेकिन काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देखो, उन्हें उठते होने के बावजूद भी उन्होंने वो खत को फाड़ा को बोले या अल्लाह ऑलरेडी तू पहले भी एक आजमाइश में डाल डाला है, मैं उसमें नाकाम हो गया, मैं जंग में गया नहीं, लेकिन अब फिर को तू दूसरा आजमाइश डालना ना तो मैं संभाल सकता नहीं। और बोल वो खत को फाड़ डाल को जला डाल वो खत को उसे बोलते लेकर आया उसे तू को बोल अब चल गया तो अच्छा रहता, नहीं कहना है तो तेरा सर उड़ाया तो याद सेंटर में तेरे सर उड़ा को फेंक बोल। जब उन्हें डर को चल जाता डर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी में आको काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ते रहते मस्जिद नबवी में, नमाज पढ़ते सोते खोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुंह तरफ देखते रहते, उनके तरफ पीछे काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला कब पहले तो सलाम फिर डालते कि मुंह ना से फिरा लेते, अब इधर दिखते सुना अब इधर देख डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फिरा लेते वहां, इतना दिल कट जाता है तो वो डालते रहते मस्जिद नबवी में बैठ। अबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा जैसा कौन भी मोहब्बत कर सकता नहीं, प्यार कौन भी कर सकता नहीं उन जैसा। अबे कौन तो भी अब हमारे घर में देख लो हमारे माँ बाप क्या, हमारे बच्चे बीवी बच्चे क्या, अब हमें कितना मोहब्बत करते, वो लगा हमारे से बात नहीं करे सर का मुंह फिरा ले तो हमने कितना तकलीफ का था। वैसा नबी के बारे में भी वो थे, नबी और काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी अब कितना मोहब्बत से रहे, कितने साल उनके साथ रहे, हर एक जंग में साथ रहे, अपने वतन भी छोड़कर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हिजरत करके आए, ईमान कबूल करके इस्लाम कबूल करके, फिर भी इतना होता है वो बोलो उन्हें कितना दिल का कट जाता भी उनका मैं इतना ये रहे हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे से इतना नाराज हो गए, एक बात के ऊपर मेरे से इतना नाराज हो गए तो बोल को उनका दिल कट जाते रहता काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु।
ऐसा पूरा 40 दिन या 50 दिन ऐसा होता, कौन भी बात करता नहीं ना सी, ये लगा सी, ये तीन सी भी। अब एक दिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते हैं, फजर की नमाज पढ़ाते हैं तो नमाज के दौरान वही नाजिल होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या को बोलते, उन तीनों की तौबा अल्लाह कबूल कर डाला। सलाम फिर से फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, वो तीना को बुला, वो तीना को बुला को खुशखबरी सुना डालो, अल्लाह ऐसे तौबा कबूल कर डाला को बोल के बोलते। अब हमारा दोस्त को क्या तो हमें गुड न्यूज बोलना लगता है, तो खुशखबरी बोलना है तो मैं पहले तो कैसा दौड़ के हमें लगा मेरा दोस्त को बोल को वही साचे वह जरे साहब एक सहाबी ने की धोते जाते रहते, दूसरे सहाबी घोड़े ऊपर जाते, मैं अभी जल्दी जाना धोता उसको ऊपर से भी हो गए। तीसरे सहाबी क्या करते गए तो पहाड़ ऊपर चढ़ को उनकी रूह उनकी डायरेक्शन है काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की घर की तरफ कर को घट्टू बता को बोलते, ये काब इब्ने मालिक खुशखबरी कबूल कर अल्लाह की तरफ से कबूल को बोलते। कब वो तो सुनते कि उन्होंने के घर में रखो काब इब्ने मालिक फजर की नमाज पढ़ते हैं, जब फजर की नमाज जरूरी को पढ़ना, कब वो तो सुनते कि उन्हें मालूम हो गया यही को बोल। लेकिन ये हम दूसरे दो सहाबा भी जाते हैं ना करे जाते, ये एक जना जहाँ को बोल रहा थे ऐसे हिसाब से बोलो, हाँ आप बीच में सुनो उधर से बोले पहाड़ के ऊपर से सुने गया मुझे, मैं आता हूँ बोलते ये सब खुशखबरी सुनाने आए। सुने क्या करते गए तो काब इब्ने मालिक के पास है 2 जोड़े थे कपड़े, उसमें एक जोड़ी खुशखबरी सुनाए वो बोल को हदिया दे रहा तुझसे, तू ले ले एक जोड़ी को बोल, हम ना करे ऐसे एक ही जोड़ी। अब उनको कभी तो मालूम हुआ कि वापस फौरन मस्जिद नबी में आ जाते, वो तीन आदमी बोला थे, कम के 2 सहाबा को भी बोला थे जाओ ऐसे ऐसा वो बोलो तौबा कबूल कर डाले अल्लाह आओ वो बोलते हैं। पूरे तीनों चले जाते मस्जिद नबी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर रहते, काब इब्ने मालिक आते पहले बैठते, काब इब्ने मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। काब इब्ने मालिक रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा चमकता है तो चांद कैसा चमकता है, कितना खूबसूरत होने चमकता है, वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक जाता है। कई को काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबाओं की तौबा कबूल कर डाले अल्लाह को बोल खुशी से चमक जाता है। ये खुद सही हदीस में बुखारी हदीस में काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद रिवायत करते हैं, ऐसा हालत है का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा तौबा कबूल किया का स्टंप बोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठे स्टंप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, ये काब जब से तेरा उम्मत ये जंगली आज से ज्यादा खुशखबरी दिन कोसा भी तेरे जिंदगी में नहीं है, वैसा दिन की खुशखबरी ये सुना है तो कबूल कर वो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। कब है तो तेरा उम्मत ये जनी की उस दिन से आज तक कोसा भी नहीं, वैसा दिन की खुशखबरी ये सुना तो है तू ये खुशखबरी को कबूल कर वो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं काब इब्ने मालिक को। जब काब इब्ने मालिक क्या बोलते मालूम, अच्छा मैं कबूल कर डाला हूँ, अच्छा मैं हाफिज होने है को बोलते, एक ही पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारे तरफ से खुशखबरी नहीं तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी, ये बोलो मुझे को बोलते तुम्हारे तरफ से है तो कहता मैं खुशी नहीं होता हूँ, कहीं कहता तुम्हें खुश हो तो भी अल्लाह नाराज हुआ मेरे से, मेरे तौबा कबूल करना अल्लाह, अगर अल्लाह की तरफ से कब कहते हो अल्लाह कबूल मेरे से राजी कब कहते हो तुम्हें भी मेरे से राजी हो जाते ऑटोमेटिक से होने से मैं खुशी होने लगता हूँ कबूल बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ये मेरे तरफ से नहीं ये अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी सुनी गई वो बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। जब उन्हें बहुत खुशी हो जाती खुशी हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूफ के वास्ते वो वही नाजिल हुई नमाज के अंदर को बोलना नमाज के दौरान जब वो आयत पढ़ते सूरह तौबा 118 आयतें और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामला को रोक दिया गया था जब जमीन अपनी सारी वसीयत के बावजूद तंग आ गई उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर बार होने लगे और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचाने के लिए कोई जाए पना खुद अल्लाह ही के दामन रहमत के सिवा नहीं है तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलटाए यकीनन वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। ये तीना के बारे में ये आयत कौन सा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान नाजिल हुआ कि वो आयत पढ़ा तो तीना को बोले तीनों भी तुम्हें खुशखबरी एक्सेप्ट करो वो बोलो। जब एक काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते या रसूल अल्लाह कौन सा माल जो तो मुझे रुकाया कि जंग में जाने के वास्ते जंग में जाने से मुझे रुकाया कि वो माल पूरा मैं एक भी हद कम नहीं मैं पूरे सदका कर रहा हूँ मैं को बोलता आप बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आज के जमाने में करोड़ा का माल वो करोड़ा का लाख का नहीं करोड़ा का माल उना का पूरा वो पूरा वही सदका कर रहा हूँ बोलते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते नहीं नहीं नहीं
तुम्हारे बीवी बच्चा के वास्ते भी धन देना जरा, तो बोलते जरे रिवायत में आता है कि आधा कर्जा लो आधा रख लो, वो बोलते है अगर कि उसमें नहीं कि पाव दे, ये पाव हिस्सा दे डालो, कम का तुम्हारे पास रख लो, वो बोलते है। अब वैसा बोलने के बाद वैसा आप कैसा है तो बोले कि वैसा बोलते, बिल्कुल अल्लाह सी काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु एग्रीमेंट कर लेते, क्या वो बोल लेते गए तो या अल्लाह आज मैं झूठ बोल रहा है तो तू मेरा तौबा कबूल नहीं करता, सो मैं आपसे रसूल के सामने क्या है झूठ बोल रहा हूं, तो आपसे इतना अच्छा बोल को बोला दे सो, लेकिन सब तू नाराज हुआ तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाती, सो होने से अब मैं क्या करता हूँ करता हूँ, भाई सच बोलने की वजह से आज मुझे इतनी खुशी हुई, तो मेरा तौबा कबूल फरमाया, मैं सारी जिंदगी में कभी मैं झूठ बोलता हूँ नहीं, सारी जिंदगी में मैं सही सच्ची बोलता हूँ, बोल को अल्लाह से वादा कर लेते हैं, वो वादा के ऊपर ही खड़े रहते हैं, सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने खुद काब इब्न मालिक हजरत खुद हदीस को रिवायत करते हैं, मेरे ऊपर कैसे कैसे हालत आए करते तो अब मैं झूठ नहीं बोल रहा तो बच सकता हूँ नहीं, लेकिन वैसा के मौके में भी मैं अल्लाह से वादा करूंगा बोल को, मैं वैसा के मौके में भी सच्ची बोलूंगा बोल को। ये पूरा वाक्य अपने बेटे को इन बुढ़े हो जाओ, बुढ़े कब तो हो जाओ नाबीना हो जाती कि उस टाइम को अपने बेटे को सुनाते हैं, ये बेटे ऐसा ऐसा हुआ, जंगे तबूक में नहीं जाते सो जैसी, और ऐसा शैतान मुझे बहकाया, ऐसा कभी तू ऐसा समझना नको, अल्लाह की काम में दीन के काम में कभी मैं सभा करता हूँ पुरसुम करता हूँ बोल के डिले करना नको उसे, कब है तो ये मालूम हो कि जब तक मैं अब भी करना बोल तो अब भी शुरू करेगा बोल को काब इब्न मालिक अपने बेटे को वसीयत करते हैं, अपने बेटे को बताते हैं कभी ऐसा करना नको, ऐसा कर को बोल कर अपने बेटे को बताते हैं। ये पूरा गज़वाए तबूक, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंग, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जंग में दुनिया से चले गए, दूसरे जंग से पहले इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे इन तीनों सहाबियों ने तौबा की थी वैसी तौबा हमारे अंदर पैदा करे, और हम वैसी उनकी जैसा उन्होंने तौबा करे, जितना अकड़ दिखाए अल्लाह के पास, और वैसा हम भी उतनी पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हमारे सामने आई इन सब पर समझने की और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।